Hello students, how are you all? I hope you guys all are well. I'm your teacher Mona and today we will discuss the adjectives. So in your previous years you already have discussed about the adjectives and in this lecture we will discuss the adjectives more in the more detail. So if you learn about the adjective you know about the adjectives, that what are the adjectives and what is the work of the adjectives. So this is the very common. And if you know the definition of the adjectives, you know about it that the adjectives qualifies the noun or pronoun, generally the noun, and it is giving the more information about the noun. So we are talking about the adjectives, but this is the very simple definition of the adjectives, and this definition is not enough. You need to know the advanced level of the adjectives and what is the use of the adjectives and how can we identify the adjectives that this word is the adjective or this is the adverb. So this is the basic thing. Okay, so what are the words in italics for, like ice cream in hilly region, or what are the function of these words? There are some words good, happy, final, hilly, modify the nouns after them, and these words are to provide some information about the noun. Generally, we can say if a word, a single word, or group of words, if it is giving the more information about the verb, we call it the adjective. So just have a look of these pictures and identify the in this sentences that what is the adjective. Like a good cricketer has to be physically fit. So cricketer is the common noun. Okay, and a good cricketer, good is giving the more information about the cricketer. Okay, so this good is the adjective. Okay, generally, or we can say that a clever girl, okay, a good girl or a happy girl, a chill girl or female cricketers. So cricketers is the noun and female cricketers is the common. Basically, the giving the information about the cricketers. And happy moments. Moments is also the noun. Happy moments is it happy here working as an adjective. So this is the most common definition of the adjective. Okay, so please don't be confused. And if you know anything about that information, that formation of human national flag was a fine expression of our patriotic zeal. The fine expression is our noun, and the fine expression is just giving the more information about the noun. So please don't say that a single sentence have the single noun. No, a single sentence have the nouns more than two. So this is the basic form of the single noun. Or we have learned about the nouns and pronouns also. So we have like proper noun, we have common noun, we have collective noun, countable, uncountable noun. So many kinds of the nouns we have, and abstract noun, concrete noun, or these nouns are generally if some words or group of the words qualifies these noun or giving the more information about the noun called the adjectives. But you have to identify the adjectives, like the word good, happy, fine, hilly, modify the nouns after them. Generally this kind of the word if follow the noun, they are called the adjective. So it is the simple thing, these kinds of the words or any kind of the verbs called the adjectives if they followed by a noun. Okay, so a single word good can play a different role. A single word happy can play a different role according to the structure of the sentence. So this is the common thing you need to understand, that please don't be strict to single rule that this word is the adjective or this word is the adverb. No, a single word can be an adjective, can be an adverb, but according to the structure of the sentence, according to the tense, and in that particular tense, a word can play a role of the adjective. In other
kind of the sentence can play a role of the adverb, or another kind of the sentence can play a role of the pronoun or the relative pronoun or any kind of the part of the speech. So it is totally basic basically depends on the that particular structure of the sentence. So please don't restrict to one single rule. Okay, so adjectives are just giving you more information or more detail about the noun, that is called the adjectives. Okay, so we need to understand the adjectives more and more by the through the exercise. Just have a look of this paragraph and identify the adjectives in the following passage. Okay, Muntaha is the Barney's best friend. Barney is the brilliant student. She borrowed 3 books from Muntaha, and all the books are new. The books are interesting as well. So just circle the words or identify the words. Those are working as an adjective. So this is the important thing. Muntaha is our adjective, is Bani's best friend. Okay, Bani is also the noun. Okay, and best friend, friend is the common noun, and best friend, generally the identification of the adjective is just that the adjective is followed by a noun. Okay, so best friend, friend is our common noun, and best friend, best is our adjective. Bani is a brilliant student, brilliant student. Bani is the noun, student is also the noun, and she's a brilliant student. This is also this is the adjective. Brilliant is the adjective. She borrowed she borrowed 3 books. Okay, how many books? 3 books. 3 is also the adjective. Okay, it is called the adjective of the numbers. Or all the books are new. All the books are new. Okay, so this new is qualified the books. Okay, the books are interesting as well. So books कैसी हैं आपकी interesting है. So books are the interesting. So all these words in a circle called the adjectives. Okay, and please learn the parts of speech in the integrated manner. Okay, so this encircled word called the adjectives, and this is the noun. Muntaha is the noun, is the proper noun. Is the beaver. Okay, and this sentence is in the past tense, sorry, present tense. Friend is our common noun. Bani is our proper noun. Is a brilliant student. Student is also our common noun. She is the pronoun. Borrowed is the verb, and it is talking about the past tense because we are using the second form of the verb. Okay, 3 books. 3 is adjective of number. We have adjective of quality, we have adjective of quantity, adjective of number, adjective of order. We have many kinds of the adjectives. So जब भी हम numbers की बात करेंगे 1 2 3 4 5, so that is called the adjective of number. And when we talk about the order like first, second, third, fourth, so it is the adjective of order. Or when we talk about the quantity, that is called the adjective of quantity. ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लाइक गुड बैड फास्ट स्लो, सो वो उन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, सम होता है, इनफ होता है, मच होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं उसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं. आप लोग ये मत सोचना है कि सिर्फ इतने ही वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे. एडजेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं. आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप लोग को उतना ज़्यादा समझ आता जाएगा कि कितने सारे एडजेक्टिव हमारे पास में होते हैं. और जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें तो उसमें से केवल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना पढ़ें. आप लोग इंटीग्रेटेड मैनर में चलें और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स. Okay, so do all the adjectives take the same position in the sentence, and in some sentence adjective used before the noun, or in some sentence adjective can be used after the noun. It is totally depends on your sentence. So use the following adjectives in the different position. One is done for you. So अब हम लोग को क्या करना है, एक ही एडजेक्टिव को हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में उसको वर्क करना है. जैसे कि हम लोग उसको नाउन के पहले यूज करें, नाउन के बाद यूज करें, या फिर हम नाउन के उसको पहले यूज करें. ठीक है, बट कई बार क्या होता है, पोजीशन चेंज होने से हमारे एडजेक्टिव का वर्क भी बदल जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, पोजीशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर
करती है। हम लोग को उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ना होगा और समझना होगा कि वहां पर वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। ये बेसिकली आपका वर्क होता है, ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइज है, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़कर उसको समझना और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना और उसमें वो कोई भी वर्ड जो है वो किस चीज का काम कर रहा है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो काम कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। Okay, so just have a look of these sentences and the exercise. Okay, let's start. So we have many kinds of the verbs: safe, interesting, new, old, unsafe, excellent, huge, quiet, cold, yellow, nice, hot, enormous, furious, gorgeous, crazy, tiny. We have so many words. Okay, now we need to use these words according to the given instructions. Okay, like one is done for us. We had a safe journey. Okay, so journey is our noun. Okay, and safe journey, safe means it is our adjective. Okay, and this sentence is the past perfect tense. Okay, past perfect tense because we are using the had. So before the noun हम लोग ने क्या किया, safe को यूज कर लिया. Safe हमारा क्या है यहाँ पर as an adjective वर्क कर रहा है. Our journey was safe. यहाँ पर भी हमारा safe जो है वो adjective का काम कर रहा है, बट हमने इसको after the verb यूज किया है. ठीक है. I found him safe. यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो वर्क कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा काम कर रहा है. तो हमें क्या करना था, एडजेक्टिव को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में यूज करना था और एक हम लोगों को करने के लिए दिया हुआ था. अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, हमें इनको यूज करके दिखाना है, इन पर सेंटेंसेस को हमें बनाना है और उसी के बेसिस पर हम लोग को आगे अपना वर्क करना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सकते हैं. एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इस एक्सरसाइज से आपका क्लियर होगा. तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए ट्राई करेंगे हम. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है. जैसे कि इंटरेस्टिंग है. ठीक है, इंटरेस्टिंग को हम लोग ले लेते हैं. हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इंटरेस्टिंग पर. सो हम एक सेंटेंस बनाते हैं. आई फाउंड अ नोवेल इंटरेस्टिंग. ओके, तो वो नोवेल इंटरेस्टिंग है, ये क्या है उसकी, ये उसकी खासियत है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्टिंग जो है एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर दिया. ठीक है. अब इसी इंटरेस्टिंग को अगर हमें कैसे यूज करना हो, एज एन वर्ब के बाद में अगर हमें यूज करना हो, ठीक है, या फिर हमें नाउन के पहले यूज करना, तो हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है. I found a novel interesting. Yeah, I found a particular novel, any kind of the novel you can say. I found that novel like I found the Pride and Prejudice interesting. Okay, so this is the common understanding. But interesting can be used in this sentence as an object. Okay, like if we need to use the interesting, this word interesting after the helping verb or after the be verb and after the noun. Okay, before the noun. So we can say that I had an interesting journey, or maybe we can say I watched an interesting movie. Okay, सो इंटरेस्टिंग मूवी कहें हम लोग या जर्नी कहें, दोनों ही क्या है, आपके नाउन है. और यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, बट वो कैसे काम कर रहा है, बिफोर दी नाउन वो काम कर रहा है. और ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया. इसी बेसिस पर हम लोग और बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमें वर्ब के बाद में उसको जस्ट यूज करना हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं, जैसे कि वी हैड अ picnic that was interesting.
तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्टेड को वर्ब के बाद में यूज कर दिया है। तो जनरली इस टाइप से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये सब आप किस पर डिपेंड करेगा, आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉमन सेंस वहां पर कैसे काम कर रहा है और आप वहां पर सेंटेंस को कैसे बनाना चाहते हो। तो आपका कॉमन सेंस कब काम करेगा, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे समझ आएंगे कि आपको कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। ठीक है। अब जैसे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अगर हम और अदर सेंटेंसेस को बनाना चाहें, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम और दूसरे सेंटेंस को बनाएं तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अपनी अनसेफ या एक्सीलेंट के बारे में या ह्यूज के बारे में। चलिए अगर हम ह्यूज को ले लें तो ह्यूज को हम लोग लेकर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो देखेंगे हमारा सेंटेंस किस टाइप से बनेगा। तो चलिए हम लोग अपना सेंटेंस बनाने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। ह्यूज ह्यूज को लेकर सेंटेंस बनाए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स को लेकर मैं सारे सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं 2-3 वर्ड्स पर सेंटेंसेस बना दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। एक आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कुछ मैं बनाकर बताऊंगी, तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को सेंटेंसेस को बनाना कैसे है और किस तरीके से आप लोग किसी भी जो गिवन वर्ड है उसको एज एन आप लोग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। आप लोग उसको नाउन के पहले कैसे यूज करोगे या फिर वर्ब के बाद में कैसे यूज करोगे, वो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है। सो ये टोटली डिपेंड करेगा। अब ह्यूज पर अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं अपना ह्यूज पर, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। चलिए देखते हैं ह्यूज क्या है। ह्यूज का भी नहीं पता है आप लोगों को क्या होता है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है। बहुत बड़ा, ये जो विशाल होता है, बहुत बड़ी जो चीज होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई हैव सीन अ ह्यूज वॉल। मैंने एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो देखी है। वॉल ऑफ चाइना जो है आप लोगों ने अगर देखी होगी तो उसको बारे में हम लोग बोल सकते हो कैसे, बहुत लॉन्ग वॉल है बट ह्यूज भी वो है। तो आई हैव सीन अ ह्यूज वॉल। वॉल, अब वॉल क्या है, यहाँ पर एक हमारा कॉमन नाउन है, वो ह्यूज है। तो ये क्या हो गया, हमारा ह्यूज वॉल हो गया। मतलब बिफोर द नाउन हम लोग को जो यूज करना था ह्यूज को, हम लोगों ने उसको यूज कर लिया है। ठीक है। अब अगर यही इसी ह्यूज को हम लोग कैसे यूज करें, हम लोग उसको वर्ब के बाद में यूज करें, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि दी जर्नी ऑन ह्यूज एलिफेंट वॉज अनसेफ। मतलब जो हम लोगों ने जर्नी की है एक ह्यूज एलिफेंट पर, आप लोगों ने देखा होगा एलिफेंट पर भी लोग क्या करते हैं, जर्नीज को करते हैं। तो जर्नी जो ये ह्यूज एलिफेंट पर वो कैसी थी, बहुत ज्यादा अनसेफ थी। ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूज क्या है, आपका एलिफेंट है। यहाँ पर भी इसको हम लोगों ने कैसे यूज कर लिया, यहाँ पर हमारा एक और वर्ड यूज हो गया है। जो अनसेफ हम लोगों को दिया हुआ है ना, वो एज एन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज कर लिया। तो इस सेंटेंस को आप लोग वहां पर भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग अनसेफ को बनाना चाहो तो। ठीक है। तो जर्नी ऑन दी ह्यूज एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। ह्यूज एलिफेंट वॉज अनसेफ। तो ये जो सेंटेंस है ये हम लोग ह्यूज वाले सेक्शन में ना लेकर इसको हम लोग अनसेफ वाले सेक्शन में ले सकते हैं, जहां पर अनसेफ जो है वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो गया है। ठीक है। और सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे हम लोग क्या बना सकते हैं, अगर हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट उसको यूज करें। ठीक है। आई, वी कैन से आई हैव डन अ मिस्टेक दैट वाज ह्यूज। मतलब मैंने एक जो है वो गलती की थी, आई हैड डन अ मिस्टेक।
जो कि कैसी, ये बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है, उसको ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने वर्ब के बाद में यूज कर दिया, ठीक है। या फिर इसको अगर जनरली हम लोगों ने वर्ब के बाद में यूज किया, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आई हैड सीन एन एलिफेंट, आई हैड सीन एन एलिफेंट दैट वाज ह्यूज। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्म में लिया जा सकता है, ये एज एन ऑब्जेक्ट भी लिया जा सकता है और एज एन वर्ब के बाद में भी लिया जा सकता है। तो ये टोटल डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस पर। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहे होंगे कि सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, कैसे फॉर्म करना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे आगे और आप लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स विद द नाउन्स दे गो विद। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, मैच द फॉलोइंग जो है सेंटेंसेस जो है उसको पूरा करना है, मैच द कॉलम को कंप्लीट करना है, वो कौन से नाउन के साथ में जाएगा, ठीक है। जैसे गॉर्जियस दिया है, टेरिफाइंग दिया हुआ है, टाइनी दिया हुआ है, ठीक है, एग्जॉस्टेड दिया हुआ है, सॉफ्ट, ह्यूज, स्टार्विंग, ओके, फ्रीजिंग, फ्यूरियस, टेरिबल, हिलेरियस एंड डेफनिंग, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स विद द नाउन्स, ठीक है। सो गॉर्जियस क्या होगा आपका, गॉर्जियस आपकी ड्रेस होगी, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, गॉर्जियस क्या है, आपकी ड्रेस है। टेरिफाइंग क्या हो सकता है भाई, कोई कस्टमर तो टेरिफाइंग होगा नहीं, ठीक है। आपका म्यूजिक टेरिफाइंग हो नहीं सकता है, या फिर टेरिफाइंग देखते हैं हम लोग और नीचे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, टेरिफाइंग को बाद में मैच करेंगे। या फिर हमारा क्या हो सकता है, टाइनी, टाइनी क्या होगा आपका, इंसेक्ट होगा, ठीक है। टाइनी इंसेक्ट हो जाएगा हमारा। सोक्ड है, ह्यूज है, ह्यूज क्या हो सकता है, ह्यूज आपकी क्राउड हो सकती है, ठीक है। स्टार्विंग क्या हो सकता है आपका, स्टार्विंग के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रीजिंग क्या हो सकता है आपका, फूड हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हिलेरियस क्या हो सकता है आपका, म्यूजिक हो सकता है। डीफनिंग क्या हो सकता है आपका, कस्टमर हो सकता है, ठीक है। टेरिबल क्या हो सकते हैं आपके, या फ्यूरियस क्या, फ्यूरियस कैसा होगा आपका, फ्यूरियस में फ्रीजिंग क्या हो सकता है आपका, टेम्परेचर के साथ में जाएगा फ्यूरियस जो है, ठीक है। सॉरी फ्यूरियस नहीं, फ्रीजिंग जो है वो आपका टेम्परेचर के साथ में जाएगा। फ्यूरियस जो है वो आपका क्या किसके साथ जा सकता है, कस्टमर के साथ में जा सकता है, ठीक है। सोक्ड किसके साथ में जा सकता है आपका, क्लोथ्स के साथ में जा सकता है, ओके। या फिर सोक्ड, एक और हम लोग मील जो है उसके साथ में हम लोग ह्यूज भी यूज कर सकते हैं, ह्यूज आपके, या स्टार्विंग, सॉरी स्टार्विंग के साथ में हम लोग मील यूज कर सकते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस जो है वो रनर के साथ में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये मैच कॉलम को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब हमारा जो है लेसन 2 स्टार्ट होगा, किसके साथ में, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। तो ये जो हमारे थे ये एडजेक्टिव्स थे। अब अगर हमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ना है तो यहाँ पर हम लोग को डिग्रीज वाली बात आएगी कि यहाँ पर कौन ज्यादा अच्छा है या कौन खराब है। जैसे कि वो सबसे अच्छा डांसर है, ही इज द बेस्ट डांसर, ओके, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। तो जो कंपैरिजन की जब भी हम बात करेंगे तो कंपैरिजन आपका किसमें होता है, 3 डिग्रीज में आपका कंपैरिजन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं आपका डिग्रीज में, जैसे कंपैरिजन कैसे होगा आपका, पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में। या फिर अगर हम दो लोगों के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं तो वो आपका कंपैरेटिव होता है। और अगर हम उसको सबसे ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं या सबसे ज्यादा खराब किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रीज में आपका कंपैरिजन यहाँ पर हो सकता है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। और इन्हीं को हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कभी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पहले पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर जो है ये समझ में आ रहे होंगे, एडजेक्टिव्स जो है आपको समझ में आ रहे होंगे, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, माहिन इज अ टॉल बॉय, साफिन इज टॉलर देन माहिन। तो माहिन इज अ टॉल बॉय, ये पॉजिटिव डिग्री में बात कर रहे हैं, बट साफिन इज टॉलर देन माहिन, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। रयान इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3, ये किसकी बात हो गई, अब ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो गई। तो इस तरह से 3 डिग्रीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं।
जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सब आपके कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। बहुत सारे डिग्रीज होते हैं आपके, हर एक वर्ड जो होता है उसके डिग्रीज हो सकते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स, बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट, और ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सो बहुत सारे आपके वर्ब्स होते हैं और सबकी क्या होती हैं, डिग्रीज हो सकती हैं। सो यहाँ पर इनको सबको क्या करना है, आपको पढ़ना है, ये सब आपकी डिग्रीज हैं जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होती हैं। इनको आप लोगों को जस्ट थोड़ा मेमोराइज करना होगा और उसके बेस पर आप लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। सो इट वॉज दियर फर्स्ट डैश हॉलीडे एंड जेमी वॉज सो एक्साइटेड। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इट वॉज दियर फर्स्ट लाइक holiday or nice holiday, and Jamie was so excited. I can't wait for skiing, and he said that all the sun and snow will be wonderful. तो यहाँ पे हम लोग को ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो इसको एक्सरसाइज को तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे अपना, बट यहाँ पर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। सो एडवर्ब वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स आप अच्छे से पढ़ लें और जो भी आपकी डिग्रीज हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें। सो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखना और उस पर्टिकुलर चीज़ को समझना। तो ये हमारे लिए आज का चैप्टर था। और आगे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। जैसे हमें दिया है आई, हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को अगर फिल करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या हो सकता है। जैसे आई कांट वेट टू गो फॉर स्काई एंड ही सेड that all the sun snow will be wonderful. The plane landed at uh, a small airport, we can say, and very soon Jamie and Jasmine and their parents will be in a small old hotel, we can say, at the bottom of the mountain. They went outside and looked, and they saw huge mountains all around them. Tomorrow I want to go up a mountain, said Jamie. They went back to the hotel. There was a nice fireplace and it was warm. In front of the fire, they saw a big brown dog. It was asleep and snoring happily. Jasmine liked dogs and she patted the dogs on the head and it opened one eye and yawned. Jasmine saw the dog's name on his collar, Bruno. Okay, like the dog looked at Jasmine and smiled and then he closed his eyes and closed his paws and went back to sleep. What a nice dog, said Jasmine. And he is a big furry softy, we can say, if there is a word. Cozy softy, we can say. Okay, cozy softy. They left the firelight and went upstairs to bed. In no time at all, Jasmine was sleeping and speeding up and down mountains as the champion sky. So they left the warm twilight. ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जो है सिंपल इनको ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। तो ये तो आपके सिंपल कॉमन सेंस पर आपको डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे वहां पर वर्ड्स को यूज करना है। आप लोग पैसेज को पढ़ते जाइए और जहां पर जो वर्ड फिट हो रहा हो उसको वहां पर फिट करते जाइए। जैसे अब यहाँ पर हमें कोई वर्ड नहीं दिए हुए हैं, हमें अपना कॉमन सेंस यूज करके अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स को यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। जैसे कि हम बात करें, सिरा जुम मुनीरा इज अ गुड गर्ल। ओके, Bondhon is her cousin. Both of them read in the same school. Bondhon is elder than, or we can say elder than Munira. Bondhon has a very good brother named Tanvin. He is so cute. To Munira's aunt, he is uh, anything can say. Munira's aunt, he is a nice, very nice. He is the very nice baby in the world. Munira loves Tanvin so much. She is Tanvin's younger sister. We can say younger or elder sister. She plays with him. She is uh, Tanvin's younger sister. She is the younger than Tanvin. We can say
and Bonthon is good about Tanvin. So is Munira about him. When Tanvin cries, Bonthon calls his mother and Munira gives him few toys. Tanvin loves the toys. Yeah, those toys. Tanvin's father present him with few toys too. तो यहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप के एडजेक्टिव्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जनरली डिपेंड करेगा आपके कॉमन सेंस पर। और इसके बाद में हमारी क्या होगी, यूनिट 6 जो है वो स्टार्ट होगी, मोर अबाउट दी वर्ड्स। सो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स दोनों ही कह सकते हैं। आज के ये जो हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में जो हम लोगों ने डिग्रीज देखी है, वो डिग्रीज आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे से याद करना है। आप लोग कोई भी ग्रामर बुक उठाइए और डिग्रीज पर जाइए और डिग्रीज को अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज डिग्रीज को याद करना ज़रूरी है। यहाँ पर मेमोराइजेशन उनका भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मेमोराइजेशन से ही याद होती हैं, तो हमेशा ये मत सोचिए कि हमेशा बस समझ कर चलना है। चीज़ों को समझा जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, बट कुछ चीज़ों में मेमोराइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को डिग्रीज याद कर लेना है। एडजेक्टिव्स हमारे हो चुके हैं और इसके बाद में हमारी आती है एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग एडवर्ब्स को आगे चलकर देखेंगे कि हमारी एडवर्ब्स क्या है और कैसे हैं और कैसे ये काम करती हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो कि एडजेक्टिव्स पर था। अगर आप लोग एडजेक्टिव्स पहले से आते हो तो भी आप लोगों की अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एडजेक्टिव्स को समझना। और आज के लेक्चर से आप लोग एडजेक्टिव्स और भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड अगर नहीं आए होंगे तो हम लोग इनको फिर से रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको एडजेक्टिव्स जो है और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।